My dear students, Assalamu alaikum wa adab. As usual, I am Nisar Ahmad Mir, CRC Zone User for teaching you through online class. In continuation to the mathematics topic, square and square root for class 8th subject to mathematics. My subtopic for today's lesson is square root exercise number 6.4. I would like you all to open your textbook 6.4. Square and square root topic. In the previous lessons, for this chapter we have learned the various methods to find the square root of the numbers. One method we have learned is by method of repeated subtraction. Second was by method of prime factorization, and third method is by long division, which today we have to discuss, and all the questions of this exercise are based on this method. How this method is applied? Let us come direct to the question to learn it. Question number 1, exercise 6.4. Exercise 6.4. Question number 1. Question number 1 is, find the square root of each of the following numbers by division method. This division method kith pٲٹھۍ چھِ أسۍ کران. This hechو أسۍ आज. Part number 1 is 2304. 2304. Solution. Yith pٲٹھۍ أسۍ division کران چھِ. أسۍ اَنو نہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ divisionس منٛز. 2304. مگر steps کیٛاہ چھِ وۄنۍ؟ Starting from the right side, extreme right, or from one's place, we make the pairs. أسۍ بناوو دۄن ہُنٛد جوڑ. یہِ بنیو اکھ. اگر ییٚتٮ۪ن پوٗنٛژِم تہِ آسہِ سُہ روزِ 19 زون لاسٹس. چوٗنٛکہِ یِم چھِ 4 برابر یتھ بنے. مگر اَنٕنۍ چھِ جوڑ کٔرِتھ دٔچھنہِ سایڈٕ, right side. اور وۄنۍ چھُ گۄڈٕنیتھ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کران چھِ پتہٕ ڈِوجن, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کران چھِ 23 یس کرو ڈِوجن. مگر اکھ خیال چھُ تھاوُن ییٚتٮ۪ن. وُنِس تانۍ چھِ أسۍ ٹریڈشنل ٹیبلز ایپلاے کران. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are یا 3 سۭتۍ 4 سۭتۍ. یتھ منٛز چھُنہٕ لانگ ڈِوجنس منٛز آسان یہِ ڈِوایزر کینٛہہ. ڈِوایزر چھُ وٕچھُن کُس گژھِ اَسہِ, کمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ. مگر اَسہِ چھُ ایپلاے کرُن نوٚو ٹیبل یُس مےٚ پٔتمِس ییٚمہِ کِس سٹارٹ کِس لیکچرس منٛز ووٚنمُت چھُ. دیٹ وی کال د سکویر ٹیبل. تۄہہِ چھِ یاد سُہ کیٛاہ گوٚو؟ 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100, and so on. سُے سکویر ٹیبل منٛز چھُ وٕچھُن کُس گژھِ 23 یس. اگر بہٕ کرٕ 1 1s 1, وُنہِ چھُ لۄکٹُے 2 2s, 3 3s, 4 4s, 16 وُنہِ چھُ لۄکٹُے, 5 5s, 25 سُہ گوٚو زیادٕ. اسلیے چھِ کم ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ زیادٕ نہٕ کینٛہہ. اسلیے کرو أسۍ 4 4s are 16. ییٚتٮ۪ن تہِ لیوٚکھ مےٚ سُے 4, پٮ۪ٹھ تہِ 4. کیٛازِ چھُ سکویر ٹیبل. 4 4s are 16. ایز یوٗجول کرو یتھ أسۍ سبٹریکشن. ییٚتہِ نیرِ اَسہِ 7. ییٚتہِ تارو یوٗتاہ یِم بنے کیری, یِم بنے 13 وۄنۍ 6, تتہِ گوٚو 7. 1 1 تہِ کِہیٖنۍ. پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ أسۍ عام ڈِوجن چھِ کران, پٮ۪ٹھٕ چھِ أسۍ والان اَکُے اَکُے بۄن. مگر ییٚتہِ چھِ اَسہِ برابر پیر والُن. اور اس لیے بۄن وسہِ 0 4.
दोयम चीज क्या करुन इस ये 4 तनस कोर यम सिटी डिवाइड कोर असी डिवीजर बनो तन 4 यह बोन वालन वही मगर डबल कर प्रेथ स्टेपस मज डबल वसान 4 to 4 गई 8 दोशन थोस जगर वही वो बे पढ़ो स्क्वायर टेबल ये पे क्या दिमो 1 1 दिमवा मगर सह 1 अख लग पान 1 बे लग 8 सत अगर बह 1 दिम 1 1 आर 1 1 8 आर 8 बनो 81 गो वन लकुट 2 सत गो लकुट 3 सत लकुट 4 सत अगर बह 2 सत दिम यह बन 2 2 आर 4 2 8 आर 16 164 यह लकुट बह वात डायरेक्ट 4 4 आर 5 5 आर सह लकुट वन 6 6 आर 7 7 आर 8 8 आर जन कर 8 8 आर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ 8 8 आर 64 8 8 आर 64 and 6 carry that is 70 तब तक हमें करना है ये जब तक यहाँ 0 आ जाए 704 minus 704 is 0 so we can say square root solution square root of 2304 is equal to 48 similarly second part solution अगर सेकंड पार्ट भी थोड़ा आप देखो इसकी तरफ सेकंड पार्ट है 4 4 8 9 मैं लिखता हूं 4 4 8 9 तो यहां भी मैं पेयर्स बनाता हूं ऐसे ये हो गया 44 इसको हम जब करेंगे 5 5 आर 25 कम है 6 6 आर 36 7 7 आर 49 ज्यादा इसलिए 6 6 आर 36 जब यहां माइनस करेंगे 14 minus 6 is 8 ये तो वैसे पेयर दोन भाई 8 to 9 ये वैसे बन कुनत 6 and 6 plus 6 डबल बनित ये बने 12 योर गोस थाउन डैश वो बन कम सित लग बह कर 3 से 3 3 आर 9 3 2 आर 6 3 1 आर 3 मगर सह वारिया कम 4 4 6 6 7 7 7 से पिछा 7 7 leave 7 6 7 7 are 49 7 2 are 14 to 4 गई 18 7 1 are 7 तक गई 8 I draw 0 therefore इस बनाओ तेल लॉन्ग डिवीजन अगर स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट 4 4 8 9 is equal to 67 and you will try the remaining parts yourself. Now it is question number 2. Find the number of digits in square root of each of the following numbers. Question number 2. Part number is मैं simple solution लिखूंगा डायरेक्ट ये कहता है कि find the number of digits in square root of each of the following. ये जो यहाँ नंबर दिए उसने दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स अगर इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट आएंगे इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखनी चाहिए कि स्क्वायर रूट कर जब हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं जितने नंबर स्क्वायर नंबर में होते हैं जितने डिजिट्स अगर वो इवन नंबर है इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है तो वहां उसका स्क्वायर रूट उसका आधा होगा अगर n डिजिट्स है तो n/2 होगा बट फॉर इवन डिजिट्स अगर ऑड होगा तो n + 1/2 होगा जैसे आप यहां देखो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 नंबर ऑफ डिजिट्स पहला है 64 मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स in square root of 64 अगर मैं 64 को स्क्वायर रूट करूं तो कितने डिजिट वहां आएंगे वहां आएगा ये इवन है
तो मैं लिखूंगा n/2, where n is number of digits, n है 2/2, that is 1. सेकंड पार्ट है 144, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू, जब 8 डिजिट्स है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है तो लिखते हैं हम n+1/2, विल बी n+1/2, where n is number of digits, that is n is 3+1/2, that is 4/2, that is 2. तो अगर हम 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका जो स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होंगे. तो ये आपने याद रखा कि n/2 इवन के लिए, ऑड के लिए n+1/2. तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स. अब लॉन्ग डिवीजन से हमें डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट करना है. लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट करना है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 इज 2.56. 2.56 जैसा मैंने बताया कि इसको ऐसा लॉन्ग डिवीजन में लाना है. 2.56 लिखेंगे हम. अब डेसिमल और नॉन डेसिमल में क्या फर्क है लॉन्ग डिवीजन करते इस वक्त. जो नॉन डेसिमल होता है, जो होल्स होते हैं, होल नंबर होता है, उसको हम राइट साइड से पेयर्स बनाते हैं. राइट साइड से शुरू करते हैं पेयर्स बना. लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉइंट से शुरू करते हैं. पॉइंट से पहले यहां लेफ्ट साइड पेयर्स बनाते हैं और पॉइंट से फिर राइट साइड बनाते हैं. जैसे यहां मैं शुरू करूं, यहां तो एक ही रह गया ये, और यहां ये पेयर बन गया. तो करेंगे एज यूजुअल. 2 को किससे होगा, 1 1 जार 1. तो ये माइनस जब यहां 1 आएगा, ये डबल होगा, ये 1 + 1 is 2. और यहां पॉइंट है. अब पॉइंट ऊपर जाएगा, 56 नीचे आएगा. तो क्या मैं ज़र्ब दूंगा उसको, क्या मैं ज़र्ब यहां दूंगा स्क्वायर टेबल से, ताकि 156 बन जाए, या इससे कम थोड़ा बन जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं, या बराबर या कम. तो मैं डायरेक्ट 6 से आता हूं. 6 6 जार 36, और इस 6 से 2 को भी मल्टीपल होगा. 6 2 जार 12, 12 प्लस कैरी 3, दैट इज 15. देयरफॉर मैं लिखता हूं सोल्यूशन. स्क्वायर रूट 2.56 is equal to 1.6. And similarly, part number second is 7.29. 7.29. इसका भी मैं 7.29, इसको किससे होगा, 7 को स्क्वायर टेबल में से 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, ज्यादा होगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4. यहां जब माइनस करेंगे यहां आएगा 3, ये जब डबल होगा ये बनेगा 4. पॉइंट ऊपर 29 नीचे. 7 से शुरू करेंगे. 7 7 जार 29, 7 4 जार 28 प्लस 4 is equal to 32, and there is 0. Therefore, we can say square root of 7.29 is equal to 2.7. And remaining parts you will try yourselves. And question number, it was 3rd, now question number 4th. Question number 4.
Question number 4. Find the last number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. यहां नीचे नंबर्स दिए हुए हैं. पार्ट नंबर 1 is 402 and part number 2 is 1989. 1989. There are so many parts but I will write 2 parts here. ये कहता है कि आप बताओ कौन सा छोटा नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अगर देखेंगे ये 402 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. ये कहता है क्या मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 का. यहां मैं 402 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखता हूं. 2 2s are 4. तो यहां 02 यहां आएगा. यहां 2 + 2 is 4. फिर 0 से होगा 0 0s are 0 0 4s are 0. तो यहां 2 आ गया. तो इसका मतलब अब 2 जो रिमाइंडर आए यहां मैं यहां लिखता हूं. When we find that square root of 402 by long division gives we find that square root of 402 by long division gives remainder 2. जब हमने इसको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट किया तो यहां रिमाइंडर आया 2. तो इसका मतलब 2 नहीं होना चाहिए इसमें. सो 402 should be subtracted by 2 to get perfect, to make it perfect स्क्वायर नंबर. जब 2 रिमाइंडर है तो इसका मतलब ये अगर हम 2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी रहेगा परफेक्ट. देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड. हम देखेंगे अगर हम ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी करना है हमें. तो क्या मिलेगा हमें? तो मिलेगा 402 - 2 दैट इज 400. अब कहता है कि इसका भी ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सो ऑब्टेन्ड. इसका स्क्वायर रूट. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू, यहां हम देखेंगे अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही देखेंगे 400 का तो ये आएगा 2 2s are 4. यहां 0 0 आएगा. यहां 4 फिर 0 से, क्योंकि अगर 0 0 यहां आए ये यहां का 0 0 है. इसको करना है एक बार. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20. ये हो गया पहला पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट इज 1989. Second part is 1989.
इसको भी 1989 को भी अगर हम इस तरह लॉन्ग डिवीजन में करेंगे तो इसका हमें रिमाइंडर आता है 53। इसमें 53 हमारा रिमाइंडर आता है। तो हम कहेंगे when we find, तो फिर लिखेंगे हम we find that स्क्वायर रूट ऑफ क्या है ये दूसरा 1989 give by long method gives the remainder 53. So 53 should be subtracted from 1989 to get a perfect square number. So perfect square number so obtained is 1989 minus 53. जो वहां निकलेगा तो इसको हम फिर लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट करेंगे। तो आएंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अभी तक था क्या हम डिवाइड करेंगे, मैं समझाता हूं थोड़ा और आपको। अगर मैं 18 की बात करूं, अगर मैं कहूंगा व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 टू मेक इट ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 18 को हम देखते हैं 4 4 16, वहां 2 फिर रिमाइंडर आता है। तो हम लिखेंगे 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 18 माइनस परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन इट इज 18 माइनस 2 दैट इज 16। 4 4 उसका स्क्वायर रूट आएगा 4। तो अब लेकिन अब है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अगर मैं 18 की बात करूं, 18 को क्या जमा किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 18 को जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 4 16, तो वहां रिमाइंडर 2 आता है और 4 का स्क्वायर कम होता है 18 से, इसलिए नेक्स्ट कौन आएगा 4 के बाद 5 25। तो 25 माइनस 18 वहां आ गया 7, तो 7 अभी इसको ऐड करना है फिर 25 बनाने के लिए 18 को 5 ऐड करना है 25, तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन भी है। ये है पहला पार्ट 5 to 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 5 to 5। हम जब 5 to 5 का लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो 2 2s are 4, यहां आया 1, यहां आया 25, ये बन गया 2 to 4। तो किससे मैं यहां इसको मल्टीपल करूं, ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 to 5। हाँ, तो अगर मैं 1 से इसको दे दूं 1 1s are 1 1 4s are 4 कम हो जाएगा 2 से, 2 2s are 4 2 4s are 8 कम हो जाएगा 3 से, 3 3s are 9 3 4s are 12 वो ज्यादा होगा, इसलिए 2 से करना है। 2 2s are 4 2 4s are 8। तो जब यहां निकलेगा 5 minus 4 is 1, 12 minus 6 41 is remainder। So we will write we find that solution, जैसा इससे पहले हमने लिखा we find that square root of 5 to 5 by long division
we get 41 as a remainder. हमें 41 रिमाइंडर आ गया. दिस शोज, इसमें लिखना है दिस शोज दैट जो यहां में आंसर मिला 22 का स्क्वायर इज लेस देन 5 to 5. ये 24 जो आंसर निकला वो इसका स्क्वायर 5 to 5 से कम है, क्योंकि 41 में भी रिमाइंडर है हमारा. सो द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 22 के बाद क्या आता है 23 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर हम 23 इंटू 23 करेंगे वो निकलेगा 529. Hence the least number to be added to किसको 5 to 5 to make it परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, कितना जमा करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट 23 का स्क्वायर 529, उसको 529 माइनस खुद क्या है ये 525 दैट इज 4. 525 को 4 जमा करना है ताकि ये 529 बन जाए, वो बिल्कुल 23 का स्क्वायर आएगा. Hence, now square number obtained. अब क्या obtain होगा स्क्वायर नंबर, वो होगा 525 प्लस जो हमें ऐड करना है 4 दैट इज 529 स्क्वायर. देयरफॉर हमें देखना है स्क्वायर रूट ऑफ 529, वो तो हमने देखा है, वो है 23. It has many more parts that you will also try yourselves. Now it is question number 6. Question number 6 is find the length of side of square question number 6 is find the length of the side of a square whose area is 441 square meter. हमें स्क्वायर का साइड बताना है कितना है, जिसका एरिया दिया हुआ है 441 स्क्वायर मीटर. मैं सोल्यूशन लिखता हूं. लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में उसने दिया है. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर जो उसने बताया है दैट इज 441 स्क्वायर मीटर. इंप्लाइज दैट एरिया किसके बराबर होता है साइड का, ये स्क्वायर का साइड इंटू साइड दैट इज एक्स इंटू एक्स. x into x is equal to 441 square meter. Implies that x square is equal to 441 square meter.
इंप्लाइज दैट अगर यहां एक्स है या इसको मुझे स्क्वायर बनाना है किसी का, तो स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, लेकिन यहां थोड़ा कंसेप्ट देना है हमें स्क्वायर रूट का। तो अगर मैं यह स्क्वायर यहां हटाऊं, एक्स खाली एक्स लिखूं, तो यहां ये इस पर ये रूट के रूट में आएगा। अगर मैं यहां स्क्वायर हटाऊं तो इस साइड रूट आएगा, ये याद रखना। इज इक्वल टू अंडर रूट 441 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ये करूंगा ये होगा, अगर मैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस करूंगा ये आएगा 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर। देयरफॉर each side of square is 21 meter. And now it is question number 7th. Question number 7th is, in a right angled ट्रायंगल ABC, ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। मैं जरा बताऊं, यहां बनाऊं थोड़ा शक्ल। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये राइट एंगल B पर है, तो इसका मतलब ये B है। फिर पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, पार्ट नंबर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो मैं ये लेता हूं, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 28, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड ए सी, ये हमें बताना है कितना है। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, एन राइट एंगलेड ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू hypotenuse square. Hypotenuse is the longest side of the rectangle triangle, and it is always opposite to the right angle. In right angle triangle ABC, right angled at B, AC square is always equal to, by Pythagoras, AC square is equal to AB square plus BC square। यहां मैं पहले सॉल्यूशन में लिखूं, AB is equal to 6 सेंटीमीटर, मैं यही पर लिखूं, AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter. Then we know that AC square is equal to AB square plus BC square implies AC square is equal to AB कितना है 6 square plus BC कितना है 8 square implies AC square is equal to 6 6 are 36 plus 8 8 are 64 implies AC square is equal to 100 implies without square AC is equal to under root 100 square root 100 implies AC is equal to, इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 10 10 100, तो 10 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो भी इजी है, उसमें भी
वो आप खुद करोगे। AC इज इक्वल टू, अब AC दिया हुआ है, थोड़ा मैं यहाँ लिखा, AC 13 है, BC, वहां भी हम लिखेंगे AB पार्ट नंबर 2 में AB स्क्वायर, AB दिया हुआ है, AB स्क्वायर, AB फाइंड AB, हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इंप्लाइज AB हमें दिया हुआ नहीं है, प्लस BC कितना दिया हुआ है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AC दिया हुआ है 13 स्क्वायर इंप्लाइज AB प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 13 169 इंप्लाइज स्क्वायर है ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे उस साइड -25 इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो 144 इंप्लाइज खाली AB स्क्वायर को छोड़ के ये आएगा स्क्वायर रूट 144 इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 44 is 12 into 12 square, that is 12 is the answer. And now it is question number 8. Shabash. Now it is question number 8. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remains the same. Find the minimum number of plants he needs more for this. एक गार्डनर को टोटल प्लांट्स अवेलेबल, टोटल प्लांट्स अवेलेबल 1000 है, 1000 plants, number of plants in one row is equal to number of plants in one row and number of columns should be same, should remain same. ये कहता है कि जितने लाइन हमें लगाने हैं इस तरफ भी लाइन, रो जो होगी, रो भी इतने होने चाहिए, कॉलम्स भी इतने होने चाहिए. So the required number of plants, so the required number of plants should be परफेक्ट स्क्वायर. ये जो रिक्वायर्ड नंबर है वो परफेक्ट होना है, लेकिन अभी हमारे पास कितना, इसके पास कितने हैं 1000. 1000 का हम लॉन्ग डिवीजन जब स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है इसमें 3 3 are 9 1 0 0, ये बनता है 6 1 1 1 1 are 1 1 6 are 6, तो यहां 39 आता है, 39 रिमाइंडर आता है. हम लिखेंगे we find that square root of 1000 give
39 by लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हम इसका जब किया हमने, इसने 39 रिमाइंडर दे दिया। तो दिस shows that 31 स्क्वायर, जो यहाँ आंसर निकला, ये निकला हमें 31 का स्क्वायर, 1000 इज 31 स्क्वायर प्लस रिमाइंडर 39। 31 का स्क्वायर इज लेस देन 1000। सो द नेक्स्ट square number is 32 square। that is 32 को जब हम 32 से ज़र्ब करेंगे वो बनता है 1024। तो इसका मतलब 1000 के बाद जो 31 स्क्वायर के बाद जो आता है 32 का स्क्वायर, वो बनता है 1024। तो इसका मतलब है इसको हमें 24 और चाहिए। Therefore the number of plants required more, और कितने चाहिए गार्डनर को, ताकि कॉलम्स और रोज इक्वल हो जाए प्लांट्स के। तो हम कहते हैं 1024 माइनस 1000 जो इसके पास है, दैट इज 24 इज आंसर। एंड नाउ इट इज लास्ट क्वेश्चन। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल। 500 बच्चे हैं एक स्कूल में। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड। इनको पीटी करना है, फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए इनको इस तरह खड़ा होना है, दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसा ही जैसे अभी ट्रीज का करना था। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट, लेकिन यहां हमें बताना है कि कितने लेफ्ट हो जाए। तनवस वुन ये कुल रो लोनन मज तो खड़ा तीत अगर इत 10 इत जेशन खजरी तो 10 जेशन तो पे पिलाय मज 10 तो लोन तह 10 बन लाइन मज 10। तो अत वो तन कत्या बे जरूरत, मतलब एड कत्या करो, मगर वन दपान वन कत्या हुरन, मतलब यह कत्या करो सबट्रैक अत नंबरस। बोले क्वेश्चन नंबर 9 solution। total children is equal to 500। इसको हम लॉन्ग डिवीजन में लेंगे 500 को। 2 2s are 4, 1 0 0, यहाँ 2 2 4, तो देखेंगे 2 से होगा इसको, 2 2s are 4, 2 4s are 8, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज 10 minus 4 is 6, 9 16 is रिमाइंडर। हम लिखेंगे we find that square root 500 on division by long division gives 16 as a remainder। वन तशर पे अन 22 लाइन प्रेथ कुछ लाइन मज रोजन 22 बच्चे खड़ा, मगर शुरा हुरन ये वुन कत्या रोजन पे क्या अत कत्या त्रो बेस
16 as remainder. So 16 children would be left erosion path in the arrangement. At arrangement as much as name adjust here. This was the last question of this exercise. Today we have finished the chapter square and square root. In case you have any doubt, you need any clarification, I am repeatedly saying you to call me on phone number 788-98-555-74. If you are watching this class through YouTube, through my YouTube channel, that is Mir Nisar space Zone Dewsar. Don't forget to like the channel, subscribe the channel, and write the comments and your give me the feedback. And inshallah, next lesson will be cubes and cube roots. Thank you very much.